Welcome to the new lecture, dear student. Today we are going to discuss about important numericals which are based on the Nernst equation. Last वीडियो में हमने देखा था कि कैसे Nernst equation का एक्सप्रेशन आता है. आज हम उसी Nernst equation को देखेंगे कैसे वो कुछ पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, pH कैलकुलेट करने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है. So let us see the first one. The first question is calculate the potential of the following cell at 298 Kelvin, and this is the cell which has been given. Potential of this has been given. This is not required because you know the potential of this cell is going to be, a half cell is going to be 0. So first step आपको क्या करना है? पहला step, this is the first step you should go for, that is E naught cell should be obtained. And what is E naught cell? Simply see, I would say this is the right hand side and this is the left hand side. So we'll put it like this. E naught, that's a very simple way. E naught of the right hand side minus E naught of the left hand side. So what is the potential on the right hand side? It will be 0 minus, this is going to be minus 0.44. So you'll be getting here value that is plus 0.44 volt. Now next step is to write the cell reaction. So what is the cell reaction? What will happen at the anode? So at anode, which is an anode? This is an anode. So here Fe will get oxidized to Fe2 plus 2 electron. And when we go for the cathode, so at cathode, what will happen here? H plus ion, this will undergo reduction. H plus ion will undergo reduction to form half H2 gas. Again, we know कि हमें रिएक्शन, सेल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2. इसलिए हमारा जो सेल रिएक्शन आएगा इसमें सेल रिएक्शन ये होगा, इट विल बी लाइक दिस, Fe solid plus 2H plus, that is aqueous, will give Fe2 plus H2 gas. So what is the value of N required in the Nernst equation? So N here will be equal to 2. You can see this is the number of the electron that is participating in the reaction, और हम by change in oxidation number भी find कर सकते हैं. Fe 0 से plus 2 गया, so N की value हो गई 2. Now we know Nernst equation क्या थी. So जो Nernst equation था उसका मैं एक फॉर्म लिख रहा हूं. So Nernst equation we have seen that is E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by, it will be N log concentration. We have seen it is a concentration of the ions on the product side and upon concentration of the ions on the reactant side. ठीक है. So here we have to find out what E cell. E naught cell हमें मिल गया है, क्या है देखो यहाँ पर इतना है. So I'll just put it 0.44 volt minus, or that will be equal to what? That will be minus 0.059. N value is 2. Now it will be log concentration of Fe2 plus ion will be there, and you can see that we have here gas. So I will just put it here, partial pressure of hydrogen upon, it will be concentration of Fe, I would say concentration of H plus ion whole square. Here Fe is in solid form, so we'll not take that into consideration. So this will be now here 0.44 minus 0.059 by 2. Let us substitute the value of concentration. So concentration of the Fe plus 2, you can see 10 raised to minus 3 is there. So I'll put it 10 raised to minus 3. That is into pressure of the hydrogen gas already is 1. If it would have not 1 bar, then we would have substituted the value of the partial pressure of the hydrogen. So it has been 1 divided by H plus ion concentration is already 1. So it will be 1 square. So we'll be getting here 0.44 minus 0.059 by 2. And you can see this is log 10 raised to minus 3. So if I take this as 10 raised to minus 3 multiplied with this, then what we'll be getting here is, see this is log 10 raised to, I am just putting here minus 3. एक दूसरा स्टेप ले लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? It will be 0.44 minus 0.059 by 2 into, ये minus 3 यहाँ पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये log, ये क्या हो जाएगा? log, ये 3 आगे आएगा, so multiply by 3 and that will be log
10 and log 10 is going to be 1. So I'm just writing this is so into log 10. I think the point is clear. ये 10 रेज़ टू -3 था, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई में लूंगा तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगी. इट विल बी लाइक दिस फॉर्म एंड सिंपली देन व्हाट यू टू डू इज 0.44 minus 0. For time being, I am just taking approximately 0.6. You should not take it if you are doing by calculator, or you can just put it. This I am taking as point. So if it has been 0.06, so it will be 2 multiplied here by 3. So obviously it will be 0.03. So you will be getting here point that will be 0.9. Point. So it will be 0.09. And just have the subtraction, you'll get the answer. So this is how we'll be getting the cell potential. ये तो easy है, कर सकते हो ना? I hope you will be able to do it. Okay, now let us come to the next one. इसी तरह का एक यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड आउट ई नॉट सेल. सो ई नॉट सेल कैसे मिलेगा? ई नॉट सेल वापिस यहाँ पर देखो, ई नॉट, इट विल बी ई नॉट ऑफ द राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड का ई नॉट क्या है? राइट हैंड साइड का ई नॉट तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसका 0 होगा. सो 0 माइनस ये वैल्यू कितनी है? 1.08. सो 1.08. सो यू विल बी गेटिंग हियर माइनस 1.08 वोल्ट. सो दैट इज ई नॉट सेल. डियर स्टूडेंट, यहां पर कई बार ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, कभी कोई पूछे ऐसा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट सेल, और 4 ऑप्शन दिए गए हों विद पोटेंशियल. तो एक बात ध्यान रखो, कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पोटेंशियल नेगेटिव नहीं हो सकता. यहां पर हमें पोटेंशियल नेगेटिव आया. हमने याद है ना, हमने एक बात पढ़ी थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही होती है, और वो नेगेटिव होने के लिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पर हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आई. इसका मतलब कि ये जो हमने सेल रिप्रेजेंटेशन जो दिया है वो इनकरेक्ट है. कई बार एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंटेशन इज इनकरेक्ट. तो जिसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आए वो ऑब्वियसली एक इनकरेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है. एनीहाउ, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल, तो हमें आंख बंद करके कैलकुलेशन में ही जाना है. सो सेल रिएक्शन अगर हमें लिखना पड़े तो सेल रिएक्शन में यहाँ पर हम क्या कहेंगे? सेल रिएक्शन में यहाँ पर अगर हम बात करें तो एट एनोड क्या होगा? एट एनोड, तो एनोड ये क्या है? Br ऑक्सीडेशन होना है, तो यार 2Br माइनस विल गिव Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और अब जो कैथोड होगा उसके ऊपर क्या होगा? सो एट कैथोड it is going to be 2H plus ion plus 2 electron will give H2 gas. Just make the sum of this. So you'll be getting 2Br minus, that will be aqueous, plus 2H plus ion. Aqueous will be giving Br2 plus H2 gas. So now equation लिखेंगे, उसके पहले यहाँ पर n equal to, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर n equal to कितनी वैल्यू आएगी? 1 कि 2? So here you can see about we have got here change in oxidation number. देखो क्या हुआ? -1 से 0. ध्यान रखना, ये मैंने रिएक्शन इस तरह से बैलेंस किया. I would have written like this also, जैसे Br हाफ Br इलेक्ट्रॉन ऐसा भी लिख सकता था, ठीक है ना. अगर मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है 2Br Br2 2 इलेक्ट्रॉन, नो प्रॉब्लम, ठीक है. अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है? व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ देखने का है. व्हाट इज दिस? -1 से लेकर यहाँ पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना. ये -1 से 0 आ रहा है. अगर मुझे सपोज करो कि इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन से लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां पर देखो यहाँ क्या हो रहा है? वी हैव जस्ट अबाउट गॉन फॉर दी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर n इक्वल टू 2 ही लेंगे. अगर मैं n इक्वल टू 1 लेता तो भी पॉसिबल था, लेकिन उसके लिए इक्वेशन क्या होती? तो देखो इक्वेशन मुझे ऐसा करना पड़ता. आई वुड हैव रिटन लाइक दिस, Br माइनस विल गिव half Br2 plus it will be electron, and H plus electron giving half H2. ऐसी सिचुएशन में ये Br minus plus H plus giving it will be half Br2 plus half H2, ऐसा इक्वेशन आता. ठीक है, तो उस वक्त क्या होता? फिर जो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म आता उसमें ये चेंज हो जाता. हाउएवर यहाँ पर तो हम n equal to 2 ले रहे हैं, n equal to 1 भी अगर ये इक्वेशन होता तो हमें n equal to 1 लेना पड़ता. So here we are just taking what is the total change in oxidation number. So here it has been -1, so 2 into
है ना, -1, और ये क्या हो गया 0, सो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2. नाउ अप्लाइंग द Nernst इक्वेशन, E cell will be equal to E naught cell minus 0.059 by 2 log concentration of, it is Br2. सो Br2 लिक्विड फॉर्म में, इसका हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे. यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है लेकिन उसका प्रेशर 1 बार है, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है. तो डायरेक्टली मैं दे रहा हूं यहाँ पर, इट इज ऑन द रिएक्टेंट साइड जो है Br माइनस का स्क्वायर और यहाँ पर H प्लस आयन का स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ पर सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल कितना था, -1.08, ये हो गया -0.059 और बाई 2 लॉग यहाँ पर हुआ 1. Br माइनस आयन कितना है, Br माइनस एन 0.01 है, तो 0.01 इज 10⁻⁻², उसका स्क्वायर, और H प्लस आयन कितना है 0.03 का स्क्वायर. देखो अगर हमने n इक्वल टू 1 दिया होता, ये इक्वेशन कंसिडर की होती, तो ये पावर यहां पर नहीं आते. ठीक है. हाउएवर अब देखो यहां पर क्या होगा, -1.08 -0.059 बाई 2, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो विल बी गेटिंग लॉग ऑफ 1.111 इंटू 10⁻⁷. ठीक है. फिर इसको क्या करेंगे हम, -1.08 -0. अगर मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 0.6 ले लूं, अगर कैलकुलेटर से करते हो तो नहीं करना है. ठीक है. इस तरह से तो इट विल बी 3. ठीक है. और ये हो गया लॉग, सो इट विल बी लाइक दिस. आई एम जस्ट अप्लाइंग द लॉग कॉन्सेप्ट. तो लॉग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ये ऐसा लिखेंगे कि इट इज लॉग ऑफ 1.111 प्लस इट इज लॉग ऑफ 10⁻⁷. So this will be -1.08 -0.03. This is going to be log 1.111 plus it is going to be log 7 आगे आ जाएगा. So it will be like this. This will be -1.08 -0.03. इसका आपको लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूट +7 and then go for the calculation. So this is a very simple way of calculating the potential of the cell not in a standard state. अब और कुछ तरह के न्यूमेरिकल भी देखते हैं. चलो देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल. तो यहां पर एक सेल पोटेंशियल इस सेल का फाइंड करना है, Ag plus and Ag. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर इन दिस न्यूमेरिकल. आप देखो दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोड है. जब कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा बने जिसमें दोनों साइड में इलेक्ट्रोड सेम हो लेकिन वो डीप किए गए हो सॉल्यूशन में, हैविंग डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल. तो ये एक एग्जाम्पल है कॉन्सेंट्रेशन सेल का. यहां पर जो भी हमें पोटेंशियल मिलेगा, it will not be due to the difference of a tendency of electrode to release or gain electron, but it is because of the concentration. तो क्योंकि यहां पर पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आने वाला है, इस डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आने वाला है, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन सेल कहेंगे. हम इसको डिफाइन भी करेंगे, लेकिन पहले समझ लें कि हम इसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं एंड देन विल डिफाइन इट. तो यहां पर यू कैन सी, पहली बात तो ये है कि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल अगर होता तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पर 1 मोलर और 1 मोलर होता, तो दोनों ही हाफ जो सेल होते वो सेम हो जाते हैं. सो ऑलवेज फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इस तरह का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल हो जहां पर सेम इलेक्ट्रोड हो तो वो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, और कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए हमेशा E नॉट सेल विल बी ऑलवेज 0. ठीक है. सो नाउ इफ आई जस्ट राइट अबाउट दी, अगर मैं सेल रिएक्शन लिखूं तो सेल रिएक्शन जो है वो किस तरह से आएगा. तो देखो एनोड की तरफ जो Ag होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, वो Ag प्लस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, हैविंग कॉन्सेंट्रेशन 0.25 मोलार. जब कॉन्सेंट्रेशन सेल हो तो हमेशा एक्वियस की जगह पर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लिखो प्लस इलेक्ट्रॉन. नाउ जहां पर कैथोड है तो वहां कैथोड पर क्या होगा, Ag प्लस ऑफ द कैथोड हैविंग कॉन्सेंट्रेशन 0.75 मोलार, उसका रिडक्शन होगा एंड दैट विल रिजल्ट इनटू Ag सॉलिड. सो इसका जो सेल रिएक्शन आएगा वो इस तरह से हम लिखेंगे, Ag प्लस इट इज बीन 0.75 मोलार कॉन्सेंट्रेशन गिविंग Ag प्लस 0.25 मोलार कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. तो इसका मतलब यानी देखो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ गया, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू विल फाइंड दैट हियर वी कैन से Ag प्लस ion having higher concentration through the solid bridge will be moving toward the
anode having Ag plus ion with concentration 0.25 molar. So we can say, what is a concentration cell? Those cell which consist of the same electrode deep in the solution having different concentration, in which there will be migration of the ion from higher concentration solution to the lower concentration solution, generating the potential. ओके, तो यहां पर अब हम देखो क्या लिखेंगे. अब यहां पर n की वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ 1. सो नाउ E cell will be equal to, that will be E naught cell minus 0.059 by 1. It will be log of concentration of the Ag plus ion. Which Ag plus ion? Which is at the anode side, and this will be concentration of Ag plus ion which is on cathode side. So we will say here, ये तो हो गया, ये तो जीरो ही है, तो minus 0.059 by 1. It will be log एनोड के साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन था, that is this one, and this is how much it has been, 0.25 divided by 0.75. So that is, you know, about 1 by 3. So that is going to be minus 0.059. It will be log 1 minus log 3, and you know minus 0.059, log 1 is 0 and log 3 is 0.4771. So just have the 0.059 multiplied by 0.4771, you'll get the potential in terms of volt. ठीक है? So this is about an example of a concentration cell. Now coming to the equilibrium constant, हम कैसे कोई भी न्यूमेरिकल में equilibrium constant find कर सकते हैं, ठीक है, using the Nernst equation. अब यहां पर जैसे ये जो इक्वेशन यहां पर जो सेल दिया गया है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? E naught सेल फाइंड करेंगे, ठीक है. और E naught सेट में क्या लिखते हैं? जनरली वी राइट इट E naught ऑफ राइट हैंड साइड माइनस E naught ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. डियर स्टूडेंट, देखो एक यहां पर एक बहुत छोटी सी चीज है, कई बार ज्यादा करके स्टूडेंट गलती कर लेते हैं. जैसे देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, कॉपर से कॉपर प्लस 2, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ. Ag से Ag प्लस, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ. अब जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, ये तो लिख लेते हैं, बराबर, और कोई एग्जामिनर स्मार्ट हो और ऐसी कोई बात करे तो बच्चे वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहां पर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर भी गलत आएगा, ठीक है. तो ये जब हम लिखते हैं, ये किसके लिए लिखते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए. तो ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. तो अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है यहां पर? इट विल बी, इसका प्लस 0.80 होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होगा. राइट हैंड साइड का तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या लेंगे हम? इट विल बी 80, और ये क्या होगा लेफ्ट साइड का? इट विल बी 0.34, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा ना. सो दिस इज गोइंग टू हैव द डिफरेंस एंड दैट विल बी 0.46 वोल्ट हमें मिलेगा, ठीक है. तो यहां पर भूल ना हो जाए, ध्यान रखो. नाउ सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे सेल रिएक्शन लिखते हैं. तो डायरेक्टली आई एम पुटिंग द सेल रिएक्शन, CuAg plus, this will be giving Cu2 plus aqueous plus it will be 2Ag solid, ठीक है. तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हुई? ऑब्वियसली 2. अब कोई भी सेल, इफ सेल इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई सेल इक्विलिब्रियम में है तो उस वक्त का उसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 होगा, 0.0 वोल्ट. Therefore what will happen here? Nernst equation जो थी, E cell जो हम लेते हैं, E cell इक्वल टू क्या लिखते हैं? E naught cell माइनस 0.059 by 2, इट विल बी लॉग, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए लिखेंगे इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? Kc. लेकिन क्योंकि E naught cell तो यहां पर, सॉरी, E cell यहां पर क्या है? 0 है. Therefore E naught cell will be equal to 0.059 by 2 log Kc. कॉम्पिटिटिव लेवल पर डायरेक्टली यही इक्वेशन अप्लाई करने की, ठीक है. तो यहां पर पोटेंशियल कितना है? 0.46 है, 0.46 यहां पर मिला था हमें, ठीक है. दैट इज गोइंग टू बी 0.0, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं यहां पर लिखूं तो 0.3, दैट विल बी log Kc. सो विल गेट log Kc विल बी इक्वल टू, आई विल जस्ट गेट इट फॉर 46 by 3 कर दूं, ठीक है. और 46 by 3 करूंगा तो यहां पर आएगा 1, दैट इज 15.333. This is what we are going to get. तो अब यहां पर क्या कहेंगे हम? Kc will be equal to what? It will be
log, it will be antilog of 15.333। और ये जो है, अब एंटीलॉग में हम क्या करते हैं, ये जो डेसिमल के आगे का जो वैल्यू फैक्टर होता है वो 10 के पावर में चला जाता है, और तुम्हें एंटीलॉग किसका फाइंड करना पड़ता है, पॉइंट। सो यू टू फाइंड आउट द एंटीलॉग नाउ ऑफ, इट विल बी 0.333 into 10 raised to 15। इसका एंटीलॉग फाइंड करो, वैल्यू यहां पर रखो, you'll get the Kc। Okay, now let us see about here two very important numerical। जैसे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर पोटेंशियल, ये जो सेल दिया गया है, potential of this cell has been given, we have to calculate the pH of the HCl solution। You can see HCl concentration has not been specified because we have to find out the pH। Okay, now let us see about how to do this। So first of all, what we'll do, first of all we'll find E naught cell। So E naught cell will be equal to what? We know E naught R minus E naught L। So what is the right side? This has been there, so 0.80 given, and this is for hydrogen, that is 0, so you'll get plus 0.80 volt। Now coming to the reaction that is going to take place at anode। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, आप एनोड और कैथोड के हिसाब से भी लिख सकते हो, पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ सीधा। So that is going to be half H2 gas plus it is going to be Ag plus giving H plus, that is with X concentration plus Ag solid। तो ये N इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर 1, समझ में है ना, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडेशन में जाएगा, ये H प्लस आयन बनाएगा, एंड Ag of this will undergo reduction to form this। So we have got N equal to 1। Now as per the Nernst equation, E naught cell, sorry, E cell will be equal to E naught cell, that will be minus 0.059 by 1। It will be log of concentration of H plus upon concentration of Ag plus। So here it is going to be, अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल दे दिया गया है इसका, इस सेल का, that is 1.02, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें मिला 0.80 minus 0.059, that is log concentration of H plus ion, and what is the concentration of Ag plus? It has been 10 raised to minus 2। इसको इस तरफ ले जाते हैं तो what will be getting here is point, will be getting 0.1.0, so it will be 1.02 minus 0.80, that will be equal to minus 0.059, and this is going to be log concentration of H plus ion minus log 10 raised to minus 2। ठीक है, तो इसका जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, so you will be getting here point, that will be 0.22 will be obtained, and this will be then upon 0.059 coming up for this। So minus हम यहीं पे रख रहे हैं, so this is going to be log concentration of H plus ion, और ये हो जाएगा, this is going to be minus 2 coming up here, it will become plus 2 with log base 10। So we'll be getting this। Now ये जो वैल्यू है approximately 3.729 जितनी आएगी, so this is going to be here minus, now again it is going to, अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं तो minus log concentration of H plus ion, this is going to be minus 2, ये minus 2 उस तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा 5.729, that will be equal to minus log concentration of H plus ion, and this by definition is what, pH। Therefore we can say pH is going to be 5.729। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी बुक में ऐसा दिया हुआ नहीं है, ये तुम्हारे एक्सपेक्ट प्रैक्टिस के लिए और काफी इंपॉर्टेंट भी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब देखो यहाँ पर ये भी काफी अच्छा न्यूमेरिकल है जहां पर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं, एंड यू कैन सी हियर दैट यहां दोनों साइड में प्लेटिनम है, और मैंने कहा था कि जब सेम इलेक्ट्रोड हो दोनों साइड में, दैट मींस इट्स अ कंसंट्रेशन सेल। सो इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंसंट्रेशन सेल। नाउ फॉर कंसंट्रेशन सेल हमें ये पता है कि इसका E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट सेल इज 0.0 वोल्ट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द एनोड एंड कैथोड। तो एट एनोड के ऊपर हाइड्रोजन H2 gas will be giving H plus, concentration हमें पता नहीं है, so plus electron। Now at cathode what is going to happen, कैथोड के ऊपर H plus ion,
concentration specified here, that is 5 into 10 raised to minus 3, that will be giving reduction takes place giving half H2 gas. So overall जो cell reaction हुआ वो cell reaction ऐसे आएगा, that will be H plus with a concentration 5 into 10 raised to minus 3 molar giving H plus ion with X molar concentration. So n की वैल्यू तो यहाँ पर 1 हुई. Now applying the Nernst equation, so E cell will be equal to, क्योंकि ये concentration cell है इसलिए E0 cell तो 0 है, so I can write like this minus 0.059 by 1 log concentration of H plus ion that is on anode side and this is the concentration of H plus ion at cathode side. अब हमने 11th में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात स्टडी की थी, क्या? वी नो अबाउट की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो KW होता है. दैट मींस H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? KW. देयरफॉर व्हाट इज H प्लस आयन? इट इज गोइंग टू बी KW बाय कॉन्सेंट्रेशन व्हाट? OH माइनस आयन. लेकिन OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर कितना था? 10⁻⁻⁷ होता है. तो वो तो हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू काफी हाई है. सो विल बी जस्ट टेकिंग हियर KW बाय इट विल बी 2 into 10⁻³ एंड दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दैट इज अवेलेबल ऑन एनोड साइड. इसको अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और पोटेंशियल देखो ये दे दिया गया है, दैट इज 0.53. सो 0.53 minus 0.059, this is log and here we have got KW by 2 into 10⁻³ और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर दे दिया गया है, that is 5 into 10⁻³. so 0.53 को अब डिवाइड करेंगे किससे? -0.059 से. ठीक है, तो इस तरफ हो गया log KW और ये क्या हो गया? दिस इज गोइंग टू बी हियर 10⁻⁻5 नीचे आएगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻5. डायरेक्टली मैंने लिख दिया. ठीक है, नाउ हियर दिस इज गोइंग टू अप्रोक्सीमेटली बी 8.983 जैसी कोई वैल्यू आएगी. log KW दिस इज गोइंग टू बी +5. नाउ देयरफॉर log KW के क्या लोगे आप? दैट इज गोइंग टू बी हियर, इस तरफ ले जाऊंगा, सो यू गेट -19.8983. so therefore what will happen here? Therefore of course KW will be equal to NT log of -13.983. अब हमें क्या करना पड़ेगा इसका? NT log -14 + 1 -0.983 11th पे देखा था. ये वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन इसका एंटी लॉग अब जब हम फाइंड करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने ऐसा कैलकुलेशन किया. दिस मींस 13 ओनली. ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो गया? 14 बार. सो आई विल टेक एंटी लॉग ऑफ, इट इज 14 बार पॉइंट, वैल्यू ऑफ दिस इज 0.17. तो अब हो जाएगा एंटी लॉग, हमें किसका फाइंड करना है? 0.017 का, और ये 10⁻14 पावर में. एंटी लॉग इसका जब फाइंड करोगे तो मे बी 1.04 जैसी कोई वैल्यू आ रही होगी 10⁻14. दैट इज गोइंग टू बी KW. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. भले तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में ना हो लेकिन फिर भी तुम्हें ये करने चाहिए क्योंकि कोई टफ पेपर हो तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और नेशनल लेवल की जेई या नीट लेवल के कोई क्वेश्चन हो तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है, कुछ सिंपल से और भी न्यूमेरिकल हैं, लेट अस सी अबाउट दैट आल्सो. जैसे यहाँ पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका pH 2 है. अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाफ सेल हम ले रहे हैं, यानी वी हैव टू कंसीडर दिस रिएक्शन. सो व्हाट इज द रिएक्शन? तो हाफ सेल का जो रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन will be like this for hydrogen H plus ion, that will be plus electron giving half H2 gas. हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है, तो आई विल राइट एज पर द नर्स्ट इक्वेशन. पहली बात तो ये n = 1 हुआ, तो नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से मैं ऐसा लिख सकता हूं, इट इज H plus half H2 that is equal to standard reduction potential H plus half H2. ठीक है, इस इक्वेशन को हमने लिया है रिडक्शन पोटेंशियल के -0.059 अपॉन 1. ठीक है, और लॉग ऑफ ये क्या हो गया? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज पावर 1/2 अपॉन इट हैज बीन हियर H प्लस आयन कंसंट्रेशन. इसका प्रेशर जो है 1 बार ही लेते हैं हम यहाँ पर. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0, यू नो अबाउट दैट, 0.059
0.059, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी हियर log. सो यहां पर हो जाएगा, ये तो 1 है तो इट इज गोइंग टू बी H plus ion concentration. Okay, so now we can put it like this as minus 0.059 log. अगर मैं ये H plus ion ऊपर ले लेता हूं, ठीक है ना, तो by the log concept this will become plus here. मैंने H plus ion को ऊपर ले लिया. Now I can put like this minus of, let us say minus 0.059, that is log of concentration of H plus ion. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. So now here this is going to be here what? So by definition minus log of concentration of H plus ion will be equal to what? pH. So I can say minus 0.059 into pH. That is EH plus half H2. Dear student, I would have, देखो यहाँ पर एक बात हो सकती थी, pH equal to जो 2 है, अगर pH equal to 2 होगा तो concentration of H plus ion कितना होगा? That would be 10 raised to minus 2. तो ये क्वेश्चन में मैंने 10 raised to minus 2 यहाँ पर रखा होता तो भी ये सॉल्यूशन हो जाता. Why I have gone to this? Because तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है. अब यहाँ पर minus 0.059 आया, pH 2 है, वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, so you will be getting here minus, that will be here minus, it will be 0. it will be 1 है तो यहाँ पर होगा 19, 18, 18 1, 11 और ये हो गया पोटेंशियल इसका, ठीक है. तो इस तरह से हम रिडक्शन पोटेंशियल, तुम्हें वैल्यू ये याद रखनी है तो तुम्हारे लिए बड़ा आसान होगा. जस्ट अब मल्टीप्लाई करो वैल्यू एंड यू विल गेट द pH. ओके, सो नाउ लेट अस सी अबाउट हियर. उसी तरह से देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो इजी क्वेश्चन है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना और फ्री एनर्जी चेंज फाइंड करना है. इसमें हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा ना, उसके बेस पर ये न्यूमेरिकल है. अब देखो यहाँ पर फ्री एनर्जी हमें फाइंड करनी है तो हमें पता है इट इज माइनस NF E0 सेल, तो उसके लिए हमें E0 सेल तो पता होना चाहिए. अब देखो ये क्या है, डैनियल सेल है, तो यू शुड नो डैनियल सेल के लिए E0 सेल कितना होता है. E0 सेल will be equal to 1.1 volt and therefore what will happen here, delta G0 will be equal to what, minus NF E0 cell. So just about here minus number of the electron involved will be 2, so 2 into Faraday's 96500 कूलम में आएगा और पोटेंशियल ऑफ 1.1. so you will be getting here ये जो वैल्यू होगी जो भी मल्टीप्लाई करके मिलेगी यहाँ पर, this will be in terms of what, ये हो गया in terms of कूलम. so कूलम into ये वोल्ट हुआ and कूलम into वोल्ट, जो आपको वैल्यू मिलेगी that will be in terms of जूल. ठीक है, तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं. अब इसके अंदर एक और बात भी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके से फाइंड कर सकते हो. एक तो नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो E0 सेल इज इक्वल टू, इट विल बी 0.059 by 2, इसके लिए log Kc, इस तरह से फाइंड कर लोगे जहां पर ये 1.1 दिया हुआ है. या फिर एक और दूसरा भी तरीका हो सकता है, because we know delta G0 is equal to what, minus 2.303 into R into T log Kc, ये हमें पता था ही, ठीक है. और यहाँ पर ये हमें वैल्यू मिल गई है, तो आई कैन से माइनस NF E cell E0 cell will be equal to minus 2.303 into R into T log Kc, ठीक है. तो यहाँ पर ये वैल्यू तो हमें पता है, ऊपर वैल्यू दे दी गई है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, जो वैल्यू आती है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, R की वैल्यू रखो 298 केल्विन, यू विल बी गेटिंग log Kc, और फिर तुम इससे भी Kc फाइंड कर सकते हो. ठीक है, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल. मुझे लगता है ये काफी सिंपल रहेगा, बट यू कैन ट्राई दिस आल्सो एंड यू कैन चेक यू आर गेटिंग द आंसर और नॉट. कमिंग टू अबाउट द नेक्स्ट वन, दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे. 0.85 Faraday's electric current is obtained from the standard cell. Then what is the maximum work done? Now what can be the work done? We know the work done in the electrochemical cell is given as minus NF E cell. This is the work done in the electrochemical cell. Now here it has been given, potential has been given. Now what is NF? NF, dear student, it has been given here, but in what form? 0.85 Faraday. यानी NF की वैल्यू हुई 0.85 Faraday, ठीक है ना. तो यहाँ पर सीधा क्या करना है, 0.85 मल्टीप्लाई करना है 1.78 से, तुम्हें जो वैल्यू मिल जाएगी that of course it is in terms of the, अब देखो यहाँ पर 0.85 एक और चीज है, ये Faraday है तो it will be 96500 into 0.78, तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो in terms of जूल मिलेगा. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है
और इस तरह की कैलकुलेशन कॉम्पिटिटिव लेवल पर बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसके ऊपर काफी प्रैक्टिस करोगे। मैं कुछ और भी न्यूमेरिकल तुमको प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।